السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں یوسف اور میں ہوں ریحان طارق۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی ٹاپ سٹوریز پر۔ بی ایس سی میں لڑکے مات کھا گئے، پہلی 5 پوزیشن لڑکیوں کے نام۔ ماریہ نواز نے 669 نمبر لے کر بی اے میں پہلی، جبکہ بی ایس سی میں صدف 706 نمبر حاصل کر کے اول رہی۔ بی ایس سی کے تینوں پوزیشن ہولڈرز کا تعلق پنجاب کالج آف سائنس سے ہے۔ کمرشلزم سے معیار تعلیم گرنے لگا۔ کالجز کے شہر لاہور کی بی اے بی ایس سی میں صرف ایک پوزیشن، سال بھر سے سوئے محکمہ تعلیم کے اعلی افسران کی بیداری کا امکان، اساتذہ کو شوکاز نوٹسز کا موسم آ گیا۔ لاہور بورڈ نے نویں جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 2,14,975 امیدواروں میں سے 48,859 طلبہ پاس، کامیابی کا تناسب 39.48% رہا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس، میاں شہباز شریف نے تعلیمی اداروں میں خالی نشستوں پر میرٹ پر بھرتی اور ڈیجیٹل نظام سے اساتذہ حاضری مانیٹر کرنے کی ہدایت کر دی۔ لاہور میں قومی اسمبلی کی 1 اور صوبائی اسمبلی کی 3 نشستوں پر ضمنی الیکشن کل ہوگا۔ 6,86,628 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ قائم مقام سی سی پی او رائے طاہر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی پر 6,000 سے زائد پولیس اہلکار، 700 ٹریفک وارڈنز اور قومی رضاکار تعینات ہوں گے۔ ضمنی الیکشن کے لیے پریزائڈنگ افسران کو سامان فراہم کر دیا گیا۔ نگران چیف الیکشن کمشنر جسٹس تصدق حسین جیلانی کا کہنا ہے کہ تمام انتظامات مکمل ہیں۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کی زیر صدارت عالمی افسران کا اجلاس، فوج کو 4 حلقوں میں امن و امان کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ ضمنی انتخابات کے موقع پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے کل مقامی چھٹی کا اعلان۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بلدیاتی بل منظور کر لیا گیا۔ سیاہ پٹیاں باندھ کر شریک اپوزیشن نے بل کی منظوری کے دوران اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ ایمبیسڈر میں آل پارٹیز کانفرنس تحریک انصاف کے میاں محمود رشید، میاں سیم اقبال، پیپلز پارٹی کے تنویر اشرف قائرہ سمیت مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ لیسکو کے بجلی خور افسروں اہلکاروں کے گرد گھیرا تنگ، نیب نے آپریشن ونگ کو خراب میٹر تبدیل کرنے سے روک دیا۔ لیسکو افسران کی جان پر بن گئی۔ لیسکو افسر ایف آئی اے حکام کے سامنے بے بس، اسلام آباد میں صارف کا ٹرانسفارمر غیر قانونی طور پر مرمت کر دیا۔ ایس آئی اسد اللہ خان کا کہنا ہے کہ بجلی بحال کی، غیر قانونی کام نہیں کیا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے ہاؤسنگ سوسائٹی سے سروسز پر ٹیکس وصولی کے لیے ایل ڈی اے سے ریکارڈ مانگ لیا۔ شہر کے 50 بڑے لینڈ ڈیولپرز، پراپرٹی ڈیلرز اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان کو نوٹسز جاری۔ بی آر بی نہر کا بند ٹوٹنے سے حاجی کوٹ شاہدرہ کے سینکڑوں گھر زیر آب آ گئے، لوگ 3 دن سے چھتوں پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ چونگ میں نوجوان نے بد چلنی کے شبے میں بھابھی اور بھتیجی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا، ملزم یوسف گرفتار۔ آئی جی پنجاب خان بیگ نے بابر سرفراز الفا کو ایس ایس پی کاؤنٹر ٹیررزم پنجاب تعینات کر دیا۔ ایس ایس پی آپریشنز لاہور کے لیے شوکت عباس، عثمان اکرم گوندر کے ناموں پر غور۔ منشیات فروشوں کی گرفتاری اور بڑی مقدار میں منشیات برآمد کرنے پر لاہور پولیس کو شاباش۔ اے این ایف کی طرف سے پولیس کی 3 ٹیموں میں 2.25 لاکھ روپے انعام تقسیم کیا گیا۔ موٹر سائیکلوں کی نئی سیریز LEW 13A کے پرکشش نمبروں کی نیلامی، 9 نمبر آسیہ عمران نے 9,000 روپے میں خرید لیا، جبکہ 786 اور 1 نمبر میں کسی نے دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے خواجہ عمران نذیر کا گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین شاہدرہ کا دورہ، کالج کو درپیش نکاسیاب کے مسائل کا جائزہ لیا۔ ٹاؤن ہال میں پرائیویٹ جرنل پریکٹیشنرز کو ڈینگی سے آگاہی کے لیے سیمینار، ادھر کشمیر بلاک اقبال ٹاؤن میں ڈینگی مچھر کے تدارک اور آگاہی کے لیے کانفرنس کا انعقاد، جبکہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول دھرمپورہ میں ڈینگی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا اتفاق اسپتال کا دورہ،
زیر علاج اپنے ماموں عبدالحمید بٹ کی عیادت کی۔ نویں شاہراہ قائد اعظم ایوان صنعت و تجارت کے زیر اہتمام ینگ انٹرپرینیورشپ بزنس پلان کمپٹیشن کا اہتمام۔ ادھر ہارورڈ یونیورسٹی اور نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ چین اور پنجاب حکومت کے اشتراک سے صوبے میں گارمنٹس انڈسٹریل زون بنایا جائے گا۔ پنجاب حکومت اور چائنا نیشنل ٹیکسٹائل اینڈ نیٹنگ انڈسٹری کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے صدر انجمن تاجران ہال روڈ بابر محمود سمیت دیگر تاجروں کی ملاقات، عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ وزارت مذہبی امور کے زیر اہتمام حج گروپ آرگنائزرز کے لیے ہمدرد سینٹر میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد۔ سنگاپور چائے زائرین کی سماجی رہنما عابد میر کی قیادت میں حضرت شاہ عنایت قادری کے مزار پر حاضری اور دعا۔ شہر میں جھومتی ویگنیں خطرہ ہی خطرہ۔ غوث العظم روڈ پر ڈی سی او کی گاڑی کو خطرناک انداز میں اوورٹیک کرنے پر غالب مارکیٹ پولیس نے ویگن ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ وجاہت اترے نئے ٹیلنٹ میں سر بانٹیں گے، موسیقی کے اسرار و رموز سکھانے کے لیے میوزیکل اکیڈمی بنا لی۔ ہدایت کار شہزاد رفیق اور فلم ساز کامران چودھری نے افتتاح کی۔ بابا گراؤنڈ میں گزشتہ ماہ لگائی جانے والی نئی گھاس ضمن انتخابات چاٹ گئے۔ سرکاری ڈیوٹی پر مامور گاڑیوں کے نقشے پاس سے گراؤنڈ لاری اڈے کا منظر پیش کرنے لگی۔ پنجاب گروپ آف کالجز میں انٹرمیڈیٹ کے داخلے کے لیے کرکٹ ٹرائلز کا انعقاد، پہلے مرحلے میں 40 کھلاڑیوں کا انتخاب۔ سرفراز احمد کو ویزا مل گیا، قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر آج رات زمبابوے کے لیے روانہ ہوں گے۔ اور سابق کپتان وسیم اکرم کا شنیرا تھامسن سے نکاح ہو گیا، تقریب ڈیفنس میں ایک ہفتہ قبل منعقد کی گئی، وسیم اکرم کے قریبی دوستوں کی شرکت۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب بلیٹن میں خبروں کی تفصیل۔ بی اے بی ایس سی کے سالانہ نتائج میں لڑکیوں نے حسب روایت لڑکوں کو ایک بار پھر مات دے دی۔ بی ایس سی میں تمام پوزیشنز جبکہ بی اے میں 2 پوزیشنز لڑکیوں نے حاصل کر لی ہیں۔ پوزیشن ہولڈرز نے نتائج میں بہتری کے لیے نصابی کتب تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اکمل سمرو کی رپورٹ۔ پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں بی اے بی ایس سی کے پوزیشن ہولڈرز طلباء و طالبات کے ناموں کا اعلان کیا گیا۔ بی ایس سی میں پنجاب کالج گجرانوالہ کی صدف اسماعیل نے 800 نمبرز میں سے 706 نمبرز لے کر پہلی پوزیشن، سعدیہ نواز نے 699 نمبرز لے کر دوسری پوزیشن اور پنجاب کالج آف سائنس سیالکوٹ کی گلفام شہزادی نے 684 نمبرز کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ طالبات کا کہنا ہے کہ پوزیشن لینے کے لیے انتھک محنت کی۔ ان کا کہنا ہے کہ نصابی کتب میں بے شمار غلطیاں ہیں جنہیں درست نہیں کیا جا رہا۔ مسائل ہیں، ہم لوگوں کو اپنی چیزوں کو، بکس کو، سب اپنے کورس کو انوویٹو کرنا چاہیے، سب کے سامنے ایک نئی چیز آنی چاہیے، پچھلی چیزوں کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ سلیبس تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ نصابی کتب میں بہت نقص ہے، بہت زیادہ نقص ہے، اس کے اندر مسٹیکس ہے، ڈفرینٹ بک سے لے کے ایک بک کو کمبائن کر دیا جاتا ہے، کوئی ایک آتھر نہیں ہوتا اس میں تو سب سے پہلے اپنے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں اور اپنے ٹیچرز اور پیرنٹس کا کہ جن کی دعاؤں اور محنت سے آج میں اس مقام پہ کھڑی ہوں۔ بی اے میں ماریہ نواز نے 659 نمبرز لے کر پہلی پوزیشن، محمد فہد ارشد نے 666 نمبرز کے ساتھ دوسری، جبکہ چاند حیات نے 664 نمبرز لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ بی اے بی ایس سی کے امتحانی نتائج میں کامیابی کا تناسب 37% رہا۔ انگلش کے نصاب میں مجھے بہت کنفیوژن ہوئی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو ہمارے مذہب سے اور ہمارے جو رہنے سہن کے طریقے ان سے ریلیٹڈ نہیں تھی۔ میں بہت خوش ہوں اور مجھے بہت اچھے ٹیچرز ملے جس کی وجہ سے آج میں اس جگہ پہ پہنچی ہوں۔ ٹیچرز کا بہت زیادہ ہاتھ ہے اور اسپیشلی میرے سر کا سارا کریڈٹ میں ان کو دیتی ہوں۔ فیوچر میں بیسیکلی میں ایم اے انگلش کروں گا، لیکن اس کے بعد میں بھی کہ میں جرنلزم میں جاؤں۔ پہلی پوزیشن پر 1 لاکھ روپے، دوسری پوزیشن پر 75,000 جبکہ تیسری پوزیشن پر 65,000 روپے کے نقد انعامات بھی تقسیم کیے۔ قائم مقام وائس چانسلر ڈاکٹر لیاقت علی نے اعلان کیا کہ پوزیشن ہولڈرز طلباء و طالبات کو
पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने पर मुफ्त तालीम दी जाएगी। कैमरामैन रिहान गुल के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। कॉलेजों के शहर लाहौर की बीए बीएससी के इम्तहानात में 6 में से सिर्फ एक पोजीशन हिस्से में आई। सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल और असातिज़ा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। नाकिस कारकर्दगी पर शोकाज नोटिस जारी होंगे। प्राइवेट कॉलेज खुद से तैयारी करने वाले तलबा ने ही तमाम पोजीशन हासिल कर ली हैं। बीए बीएससी के सालाना इम्तिहानात 2013 में सरकारी कॉलेजेस का एक भी तालिब इल्म पोजीशन हासिल नहीं कर सका। बीएससी में तीनों पोजीशन पंजाब साइंस कॉलेज ने हासिल की, जबकि बीए में भी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात ने घर बैठकर ही तैयारी की। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि तालीमी इदारों में खाली नशिस्तों पर मेरिट पर भर्ती की जाए, जबकि स्कूलों में असातिज़ा की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग निज़ाम लाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में स्कूल रिफॉर्म्स रोड मैप प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा लिया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद अहमद खान, मशीर इजाज नबी, चीफ सेक्रेटरी जावेद असलम, मुतल्लिका सेक्रेटरीज और बरतानवी इदारा DFID के हुकाम ने शिरकत की। और बुलेटिन में यहाँ पर आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करेंगे। जाली सीनियरिटी लिस्ट तैयार करने वाले 367 वार्डन्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। असद साही इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, मजीद अपडेट्स उनसे जानेंगे। असद साही ये बताएंगे कि जाली सीनियरिटी लिस्ट तैयार करने का आखिर मामला क्या था? जी, ये वार्डन की जो सीनियरिटी लिस्ट है ये पहले तैयार की गई थी CPO शैल चौधरी की तैनाती से पहले, तो उसमें बहुत सा बोगस जो एंट्रियां की गई, जिससे 4 क्लर्क भी शैल चौधरी ने मुअत्तल किए। और जब सीनियरिटी लिस्ट दोबारा से चेक की तो बहुत से वार्डन 366 वार्डन सामने आए, जिन्होंने या तो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज की थी या ज्वाइनिंग डेट चेंज की हुई थी, और इन क्लर्कों के साथ मिलकर उन्होंने अपनी सीनियरिटी लिस्ट जो है वो टॉप पर करवाई थी। ये बाकायदा तहकीकात की गई, लोगों को सुना गया, जिस पे IG को ये रिपोर्ट भेजेगी और IG की मंजूरी के बाद DSP हेडक्वार्टर मेमूना के बयान पर चूंग पुलिस ने इन 366 वार्डन के खिलाफ फरार, धोखाधड़ी और पुलिस ऑर्डर के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। शैल चौधरी साहब का कहना है कि इन वार्डन को शोकाज भी जारी कर रहे हैं ताकि मजीद। जी बहुत शुक्रिया असद साही हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, असद साही हमें अपडेट कर रहे थे। जाली सीनियरिटी लिस्ट तैयार करने वाले 366 वार्डन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। लाहौर में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशस्तों पर ज़िम्न इलेक्शन कल होगा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला वक्फा पोलिंग होगी। कुल 6,86,628 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग स्टेशन पर फौज मामूर होगी। ज़िम्न इलेक्शन में लाहौर के कौमी असम्बली के हल्का N 129 में 223 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। हल्के में 2,73,761 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। कायम मकाम इलेक्शन कमिश्नर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने कहा है कि ज़िम्नी इंतखाबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कायम मकाम इलेक्शन कमिश्नर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इजलास में तमाम हल्कों के रिटर्निंग अफसरान को हिदायत जारी की गई हैं कि पोलिंग के दौरान किसी भी शहरी को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, अब कौम का फर्ज है कि वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से अदा करते हुए अपने वोट का हक अदा करें। मुल्क का निज़ाम उसी सूरत में चल सकता है जब हर शख्स अपने ज़मीर के मुताबिक और ईमानदारी के साथ अपने वोट का हक इस्तेमाल करे। एक सवाल के जवाब में कायम मकाम इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फौज के अफसरान को जुडिशियल पावर दे दी गई है। ये पावर इसलिए दी गई है कि अगर कोई शख्स पोलिंग स्टेशन के अंदर या बाहर गड़बड़ करे उसे फौरी तौर पर सजा सुनाई जा सके। फौज के एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को जुडिशियल पावर्स भी दी हैं कि अगर वो मौके पे किसी फर्द को कानून को हाथ में लेते हुए देखे तो वो फौरन सज़ा भी दे सकते हैं। और इसके अलावा सूबाई जो 4 चीफ जस्टिस साहिबान हैं उन्होंने हाई कोर्ट लेवल पे इलेक्शन सेल कायम कर दिए हैं जो मॉनिटर करेंगे। उन्होंने कहा कि फौज को बुलाने का मुतालबा सबका था। इस फैसले का एहतराम करते हुए फौज की खिदमात हासिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी हमारे मुआशरे का अहम जुज़ हैं। पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन सबको कानून का एहतराम करना होगा। कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। रिटर्निंग अफसरान की तरफ से लाहौर के 1661 पोलिंग स्टेशन पर तैनात अमले को
सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट से पोलिंग का सामान फराहम कर दिया गया। NA 129, PP 142, PP 161, PP 150 की नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। रिटर्निंग अफसरान की तरफ से चारों पोलिंग स्टेशन के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ज़िमनी इंतखाबात के हलकों में काम करने वाले सनअती कारकुनों के लिए कल छुट्टी का ऐलान, फैक्ट्रियाँ भी बंद रहेंगी। पंजाब के 21 इंतखाबी हलकों में मौजूद फैक्ट्रियां ज़िमनी इंतखाबात की वजह से बंद रहेंगी। सेक्रेटरी मेहनत और इंसानी वसाइल पंजाब कैप्टन देताज मोहम्मद यूसुफ ने इस ज़मीन में बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक छुट्टी का मकसद मजदूरों को वोट डालने की सहूलत फराहम करना है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सैयद हामिद हुसैन शाह की ज़ेर सदारत आर्मी के अफसरान का इजलास हुआ, जिसमें फौज को चारों हलकों में अमन व अमान की जिम्मेदारी सौंप दी गई। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सैयद हामिद हुसैन शाह की ज़ेर सदारत आर्मी के अफसरान का इजलास हुआ, जिसमें ब्रिगेडियर अकील हैदर, ब्रिगेडियर नवीद एहसन, ब्रिगेडियर आमिर नवीद के अलावा रिटर्निंग ऑफिसर सैयद अंजुम रजा, मोहम्मद अकमल खान, आरिफ महमूद खान, जावेद इकबाल वराज के अलावा दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान रिटर्निंग अफसरान की तरफ से आर्मी के अफसरान को चारों हल्कों की पोलिंग स्कीम पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई दारुल हुकूमत के 3 सूबाई असम्बली और 1 कौमी असम्बली के हल्के में 22 अगस्त को ज़िमनी इंतखाब होगा। ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी पर 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, कौमी रजाकार, 700 ट्रैफिक वार्डन्स और हसास पोलिंग स्टेशन पाक फौज के नौजवान भी तैनात किए गए हैं। कायम मुकाम CCPO राय ताहिर ने सिटी 42 के दफ्तर में बताया कि शहर के 3 सूबाई हल्के PP 142, PP 150 और PP 161, जबकि नेशनल असम्बली के हल्का NA 129 में 22 अगस्त को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। और दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िमनी इंतखाबात की भरपूर निगरानी का फैसला कर लिया। सेशन जज की सरबराही में कायम इलेक्शन कंट्रोल रूम में एडिशनल सेशन जजेस 24 घंटे उम्मीदवारों और वोटर्स की शिकायत सुनकर अहकामात जारी करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर ताबंदयाल की हिदायत पर कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की निगरानी के लिए अदालत आलिया में इलेक्शन कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। सेशन जज हबीबुल्ला आमिर के सरबराही में एडिशनल सेशन जज मोहम्मद यूसुफ और बुशरा जमान पर मुश्तमिल खुसूसी सेल कायम किया गया। ज़िला इंतजामिया ने 22 अगस्त को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के पेश नज़र लाहौर में मकामी छुट्टी का ऐलान कर दिया। लाहौर में जुमेरात को कौमी असम्बली की 1 और पंजाब असम्बली की 3 नशस्तों के लिए ज़िमनी इलेक्शन मुनक्किद हो रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया ने कल मकामी छुट्टी का ऐलान किया। DCO लाहौर नसीम सादिक ने मकामी तातील का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बाबा ग्राउंड में गुज़श्ता माह लगाई जाने वाली नई घास ज़िमनी इंतखाबात के लिए सरकारी ड्यूटी पर मामूर गाड़ियों ने रौंद डाली। ग्राउंड लारी अड्डा का मंजर पेश करने लगी। 22 अगस्त को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए सरकारी ड्यूटी के लिए बुक की गई वैगन्स और बसेस को बाबा ग्राउंड में पार्क करके तारीखी ग्राउंड पर एक और जुल्म ढाया गया है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हुक्म पर PHA ने बाबा ग्राउंड में नई घास लगाने का काम शुरू कर रखा था, जो अब ज़िमनी इंतखाबात की भेंट चढ़ गया है। IG पंजाब खान बेग ने कहा है कि सूबे के 15 अजला में ज़िमनी इंतखाबात के मौका पर 3580 पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए 38,946 एहलकार तैनात किए गए हैं। सूबा पंजाब के 15 अजला में ज़िमनी इंतखाबात को पुरअमन, गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए इंतजामात को खत्मी शक्ल देने के लिए IG पंजाब खान बेग की सरबराही में एक आला सतह का इजलास CPO लाहौर में मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर अफसरान ने शिरकत की। सूबा भर के 15 अजला में 3580 पोलिंग स्टेशन पर कुल 38,946 पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। गो गेम्स में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले शहीर हसन ने पूरी दुनिया में रंगों के जरिए पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। मजीद बता रही हैं तज़ीन मलिक। ताजपुरा फेज 1 के रिहायशी प्रोफेसर आसिम महमूद का बेटा 15 साल शहीद हसन 3 साल की उम्र से ही पेंटिंग कर रहा है। ग्रीजन बॉयज हाई स्कूल की जानिब से गुज़श्ता 5 साल से शहीद हसन को हायर अचीवर अवार्ड भी दिया जा रहा है। शहीद हसन के वालिद प्रोफेसर आसिम का कहना था कि इनके बेटे की खुदादार सलाहियतों को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, लेकिन अपने मुल्क में इसकी कोई हौसला अफजाई नहीं की गई। इन्होंने हुकूमत पंजाब से अपील की है कि इनके बेटे की फनी सलाहियतों के मुताबिक इसको आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएं। पूरी दुनिया इसके टैलेंट को, इसकी एबिलिटी को, क्वालिटी को जो है इम्बोज कर रही। बस ज़रूरत इस अमर की है कि इसकी एबिलिटी को, क्वालिटी को हमारी गवर्नमेंट माने, इसके सर के ऊपर हाथ रखे। शहीद हसन ने गुज़श्ता साल मेक्सिको में होने वाली गो गेम्स मुकाबले में पाकिस्तानी मैसी के जरिए हिस्सा लिया और दुनिया भर से शरीक 72 अफराद में दूसरी पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। नौजवान फनकार ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इसकी पेंटिंग्स की नुमाइश का इनेकाद कराया जाए।
हमारी हुकूमत मुझे कोई चांस अभी तक एग्जीबिशन का नहीं मिल सका, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे शहबाज शरीफ की तरफ से कोई एग्जीबिशन का चांस मिले ताकि मेरे काम को पाकिस्तान के अंदर सराहा जाए। कैलीग्राफी में शहीर हसन अपनी मिसाल आप है। शहीर हसन को गुज़श्ता 5 साल से खाना फरहंग में होने वाले आर्ट कंपटीशन में अव्वल रहने का एजाज़ भी हासिल है। पाकिस्तान में वसाइल की कमी है, लेकिन रंगों से खेलने वाले शहीर हसन को देखकर ये कहना बेजाना होगा कि पाकिस्तान ज़हानत और टैलेंट की दौलत से माला माल है। कैमरामैन अदनान अली के साथ तज़ीन मलिक, सिटी 42। मज़ीद खबरें बुलेटिन में शामिल की जाएंगी इस ब्रेक के बाद। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में इंटर के दाखिलों के क्रिकेट ट्रायल्स के पहले मरहले में 40 खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया गया। इन ट्रायल्स के बारे में सिलेक्टर्स और खिलाड़ियों का क्या कहना है, ये बता रहे हैं आमिर रज़ा खान अपनी इस रिपोर्ट में। माल्टन ग्रीन क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले इन ट्रायल्स में 500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चीफ कोच अख्तर मुमताज भट्ट और कोच फरहान अहमद ने ट्रायल्स लिए। पहले मरहले में 40 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया। अख्तर मुमताज भट्ट के मुताबिक दूसरे मरहले के ट्रायल जुमेरात को होंगे। पहले मरहले में मुंतखब होने वाले 40 खिलाड़ियों में से सिर्फ 6 खिलाड़ी ही पंजाब कॉलेज के लिए मुंतखब किए जाएंगे। हम जो है वो ट्रायल इनके ले रहे हैं, अभी देखते हैं कि कितने, जो हमारा जो फर्स्ट सेशन है उसमें हम कितने सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर तो कुछ ज़्यादा हो गए बच्चे तो फिर उनके जो है ना कल इंशाल्लाह ताला रीट्रायल करेंगे। जितना नोट किया गया है लाजमी बात है कि यहाँ पे अब क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। क्लब क्रिकेट नहीं होती, स्कूलों की क्रिकेट नहीं होती, इसलिए प्रोवाइड करने में जो प्लेयर है बहुत मुश्किल हो गया है। ट्रायल्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने अपने जोहर दिखाकर सिलेक्टर्स के दिल मोम करने की हर मुमकिन कोशिश की और एक ही ख्वाहिश का इजहार किया कि वो पंजाब कॉलेज की जानिब से क्रिकेट खेलना चाहते हैं। नहीं, ट्रायल देने आए हैं, अपनी इलाके से माने आए हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्लब की तरफ से भी खेली है, तो सोचा कि इधर ट्रायल देते हैं, शायद इस पेस पे आ जाएं। क्लब लेवल खेलता रहा हूँ, 2 साल हो गए मुझे खेलते हुए। इंशाल्लाह यहाँ पे ट्रायल देने हैं, अच्छी परफॉर्म की आगे इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे ट्रायल देने आया हूँ बॉलिंग की तरफ से और मैं चाहता हूँ कि पंजाब कॉलेज में मेरा एडमिशन हो। क्रिकेट की मकबूलियत के बायस पंजाब कॉलेज में खिलाड़ियों ने बड़ी तादाद में किस्मत आजमाई, लेकिन मुकद्दर इनमें से चंद खिलाड़ियों का ही साथ देगा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाहुल हक का कहना है कि मुल्क में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली के लिए पीसीबी को आलमी मेयार के लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कराने की जरूरत है। विकेट कीपर बल्लेबाज उमर अकमल को पढ़ने वाले मिर्गी के दौरों से वो नावाकिफ हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाहुल हक पीआईए की परवाज PK 758 के जरिए लंदन से लाहौर पहुंचे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान मिसबाहुल हक ने बताया कि दौरे वेस्ट इंडीज़ मुकम्मल करने के बाद टीम तो वापस आ गई, लेकिन वो अपनी मसरूफियात की वजह से वहाँ रुक गए थे। हमें इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लाने के लिए या जो भी है, लेकिन मेरे ख्याल में एक लीग बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए भी, चाहे वो दुबई में कराई जाए या जहाँ भी, क्योंकि आपके प्लेयर्स की जो ग्रूमिंग है वो नहीं हो रही। मज़ीद खबरें बुलेटिन में शामिल की जाएंगी इस ब्रेक के बाद। मधुमली के करीब BRB नहर का बंद टूटने से शाहदरा में सैकड़ों घर ज़ेरे आब आ गए। लोग 3 दिन से ब्यासा सड़कों पर वक्त गुजारने पर मजबूर हो गए, जबकि जिले इंतजामिया के अफसरान AC वाले दफ्तरों में ख्वाबे गफलत के मजे लेते रहे। नहर का पानी घरों में दाखिल होने की वजह से लोग 3 दिन से सामान छत पर रखे पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। इस दौरान लोगों का लाखों का सामान भी तबाह हो गया। जिले इंतजामिया और दीगर इदारों की बेरुखी से मुतासिरीन खाने पीने की अशिया से भी महरूम हैं, जबकि सैलाबी पानी से बीमारियां भी जन्म लेने लगी हैं। इस वाक़े को 3 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन जिले इंतजामिया के किसी भी अफसर ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। हल्के से कामयाब होने वाले मुस्लिम लीग नून के MP ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तीसरे दिन इलाके का दौरा किया और मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई, जबकि मुतासिरीन को तिबी सहूलियात वहाँ पहुँचाने के लिए मेडिकल कैंप लगा दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के MP ख्वाजा इमरान नज़ीर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन शाहदरा का दौरा करके वहाँ दरपेश मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर सेक्रेटरी जंगलात मेजर रिटायर्ड शाहनवाज बदर भी ख्वाजा इमरान नज़ीर के हमरा थे। प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन ने मेंबर सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर को कॉलेज में दरपेश मसाइल से आगाह किया। प्रिंसिपल के मुताबिक कॉलेज में निकासियाब का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से इलाके का पानी कॉलेज ग्राउंड में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से डेंगू अफजाइश का खतरा बढ़ गया है, जबकि कॉलेज में तामीराती काम भी सुस्त रवि का शिकार है। लेस्को अफसरान FIA हुक्काम के सामने बेबस हो गए। इस्लामिया पार्क सब डिवीजन में प्राइवेट सारिफ का ट्रांसफार्मर गैर कानूनी तौर पर मरम्मत कर दिया। SC असदुल्ला खान का कहना था कि बिजली बहाल की है, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। जरा ने बताया कि इस्लामिया पार्क सब डिवीजन के इलाके LOS में प्राइवेट सारिफ के ट्रांसफार्मर को डिमांड नोटिस इशू करने की बजाय गैर कानूनी तौर पर मरम्मत कर दिया गया। ट्रांसफार्मर मरम्मत करने के लिए सिविल लाइन डिवीजन लेस्को की क्रेन इस्तेमाल की गई और लेस्को अमला घंटों काम में मसरूफ रहा।
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने हाउसिंग सोसाइटी से सर्विसेज पर टैक्स वसूली के लिए LDA से रिकॉर्ड मांग लिया। शहर के 50 बड़े लैंड डेवलपर्स, प्रॉपर्टी डीलर और हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान को नोटिस भी भिजवा दिए गए हैं। PRA ने सर्विसेज पर GST की वसूली के लिए लाहौर समेत पंजाब भर की हाउसिंग सोसाइटीज का रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू कर दिया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा रिहायशी स्कीमों का रिकॉर्ड मांग लिया है। IG पंजाब खान बेग ने बाबर सरफराज अल्पा को SSP CTD पंजाब तैनात किया, जबकि SSP ऑपरेशंस लाहौर के लिए शौकत अब्बास और उस्मान अकरम गोंदल के नाम से रिकॉर्ड हैं। IG पंजाब खान बेग ने CTD SSP की खाली सीट पर बाबर सरफराज अल्पा की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जबकि SSP ऑपरेशंस लाहौर की सीट 3 हफ्तों से जायद अरसे से खाली पड़ी है। SSP ऑपरेशंस के ओहदे पर तैनाती के लिए SSP शौकत अब्बास और SP उस्मान अकरम गोंदल के नाम ज़ेरे गौर हैं। शौकत अब्बास पहले भी SSP ऑपरेशंस के ओहदे पर तैनात रह चुके हैं, जबकि SP उस्मान अकरम गोंदल भी लाहौर में चंद दिन SP सिविल लाइंस और SP सदर इन्वेस्टिगेशन के ओहदे पर चंद दिन काम कर चुके हैं। वो चंद दिन DPO ओकाड़ा भी तैनात रहे हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने मोटरसाइकिलों की नई सीरीज LEW 13A के पुरकशिश नंबरों की नीलामी की। सबसे महंगा 9 नंबर 9,000 रुपये में आसिया इमरान ने खरीदा, जबकि 786 और 1 नंबर की खरीदारी में किसी ने दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। फरीदकोट हाउस दफ्तर में मोटरसाइकिलों के लिए नई सीरीज LEW 13A के पुरकशिश नंबरों की नीलामी के अमल की निगरानी ETO कमल हसन ने की। डेंगू लार्वा बरामद होने पर महकमा माहौलियात ने माल रोड परवा के नेशनल बैंक मेन ब्रांच के HR डिपार्टमेंट के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। एंटी डेंगू मुहिम के सिलसिले में सेक्रेटरी माहौलियात अनवर रशीद और एंटी डेंगू स्क्वाड ने नेशनल बैंक माल रोड पर सफाई के नाक़िस इंतजामात पर छापा मारा और वहां डेंगू लार्वा की मौजूदगी की तस्दीक होने पर बैंक के HR डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा दी। सेक्रेटरी माहौलियात का कहना है कि डेंगू के मुकम्मल खात्मे के लिए ऐसे इक़दामात नागुज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए अवाम और इदारों को हुकूमत से ताउन करना होगा। टाउन हॉल में प्राइवेट जर्नल प्रैक्टिशनर्स को डेंगू से आगाही के लिए सेमिनार मुनाकिद किया गया, जिसमें शहर भर से जर्नल प्रैक्टिशनर्स ने शिरकत की। टाउन हॉल के कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाले सेमिनार में EDO हेल्थ डॉक्टर जुल्फ़िकार अली चौधरी, सदर पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन डॉक्टर आफ्ताब इकबाल शेख, डॉक्टर तारिक मियाँ, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर फ़रक सुल्तान, डॉक्टर शबीर, डॉक्टर सईद इकबाल, डॉक्टर शहाब और जनरल प्रैक्टिशनर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में जनरल प्रैक्टिशनर्स को डेंगू से बचाव के हवाले से एहतियाती तदाबीर से आगाह किया गया। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 मुस्तफाबाद धर्मपुरा में डेंगू के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी MP मोहसिन लतीफ़ का कहना था कि डेंगू को भगाने के लिए सबको मिलकर कोशिश करना होगी। मुस्तफाबाद धर्मपुरा में डेंगू के हवाले से होने वाले सेमिनार के मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून के MPA मोहसिन लतीफ़ थे। स्कूल के प्रिंसिपल अतीक बशीर, नसीम अख्तर, फरीदा यास्मीन, बुशरा मंजूर, शहनाज हनीफ, यूनियन काउंसिल चवन को चीफ कोऑर्डिनेटर चौधरी अब्दुल रज़ाक गुज्जर, समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार गुज्जर, मोहम्मद फयाज और तालिबात ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इत्तफाक अस्पताल में ज़ेर इलाज अपने मामू अब्दुल हमीद भट्ट की इयादत की। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मामू अब्दुल हमीद भट्ट अलालत के बायस इत्तफाक हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं और वेंटिलेटर के जरिए उन्हें मसनूई सांस दी जा रही है। अब्दुल हमीद भट्ट की उम्र 87 साल है। आज वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी अहलिया कुलसूम नवाज और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने इत्तफाक अस्पताल में उनकी इयादत की। लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल के सिलसिले में 90 शहरा कायद-ए-आज़म पर ऐवान सनअत और तिजारत के ज़ेर तमाम यंग एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस प्लान कंपटीशन का इख्तिताम किया गया, जिसमें सदर लाहौर चैम्बर फारूक इफ्तिखार, वज़ीर तालीम राना मशहूद अहमद खान समेत मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा तालिबात ने शिरकत की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर इरफान इकबाल शेख, नायब सदर मियाँ अबू ज़रशाद भी इस मौके पर मौजूद थे। ऑस्ट्रेलवी खातून शनिया थॉम्सन ने इस्लाम कबूल करने के बाद कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम के साथ निकाह पढ़ा दिया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक ओपनिंग बैट्समैन सईद अनवर ने अपने घर में वसीम अकरम की अहलिया को कलमा पढ़ाकर दायरा इस्लाम में दाखिल किया। सराय के मुताबिक सईद अनवर के घर पर ही निकाह की रस्म अदा की गई। माजी के अदाकार नईम भट्ट ने निकाह पढ़ाया, जबकि सईद अनवर ने लड़की के वकील की हैसियत से निकाहनामे पर दस्तखत की। वसीम अकरम और उनकी अहलिया लाहौर में निकाह के बाद कराची चले गए हैं, जहाँ से वो कुछ दिन बाद बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे। पुलिस और DMG अफसरान का प्रमोशन बोर्ड का इजलास 5 सितंबर को हो रहा है।
जिसमें 42 पुलिस अफसरान को ग्रेड 19 में तरक्की मिलेगी। प्रमोशन बोर्ड में चारों सूबों के IGO चीफ सेक्रेटरी शिरकत करेंगे। इस बोर्ड में पुलिस अफसरान की ग्रेड 19 में तरक्की के लिए 42 असामियां हैं। बोर्ड में पुलिस सर्विस के 28वें कॉमन के 11, 29वें कॉमन के 14 और 30वें कॉमन के 31 अफसरान की ग्रेड 19 में तरक्की मुतवक्की है। मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करने और बड़ी मिकदार में मंशियात बरामद करने पर ANF की तरफ से लाहौर पुलिस की 3 टीमों में 2.25 लाख रुपए नकद इनाम तकसीम किया गया। शफीकाबाद के सब इंस्पेक्टर मजहर इकबाल, शाहजहां के सब इंस्पेक्टर आशिक अली मिस्र शाह के ASI खलील महमूद और उनकी टीमों ने पिछले चंद माह में 100 किलो चर्स और 13 किलोग्राम अफयून कब्जे में ली थी, जिस पर ANF की तरफ से इन 3 टीमों के लिए 2.25 लाख रुपए की इनामी रकम तकसीम की गई। लेस्को ने बिजली चोर अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। नैब ने ऑपरेशन रिंग को खराब सिंगल और 3 फेज मीटर तब्दील करने से रोक दिया, जिसकी वजह से अफसरान में खलबली मच गई। वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन रिंग के करप्ट अफसरान और मुलाजमीन ने चोरी में मुलव्विस अफराद को बचाने के लिए मीटर्स तब्दील करने का सिलसिला शुरू कर दिया, जिस पर नैब ने लेस्को को सिंगल और 3 फेज मीटर तब्दील करने से रोक दिया। ज़राए ने बताया कि लेस्को 3rd सर्कल में नोटिफिकेशन जबकि दीगर अफसरान को ज़ुबानी तौर पर अहकामात जारी किए गए हैं। नोटिफिकेशन में 15 रोज़ कबल लगने वाली मीटर्स की तफसीलात भी तलब की गई हैं। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा इक़दाम से बिजली चोरों को पकड़ने में तो मदद मिलेगी, लेकिन मीटर जलने की वजह से बंद होने वाली सप्लाई के हामिल सारिफीन को दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। गौसुल आज़म रोड पर DCO लाहौर की गाड़ी को खतरनाक अंदाज में ओवरटेक करने पर गालिब मार्केट पुलिस ने वैगन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। गालिब मार्केट पुलिस के मुताबिक वैगन ड्राइवर अब्दुल गनी गौसुल आज़म रोड पर खतरनाक ड्राइविंग कर रहा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ा। इस पर DCO लाहौर ने 15 पर कॉल करके वैगन ड्राइवर के खिलाफ शिकायत की, जिस पर थाना गालिब मार्केट पुलिस ने वैगन का ताक़ुब करके ड्राइवर को मेन मार्केट से गिरफ्तार कर लिया और वैगन को थाने में बंद कर दिया। DG LDA आहद खान चीमा ने 2 अफसरान की तैनाती के अहकामात जारी कर दिए हैं। डायरेक्टर जनरल LDA आहद खान चीमा ने मोहम्मद सलीम को डायरेक्टर इन्फोर्समेंट जबकि अहमद मुमताज़ अली खान को डायरेक्टर रिसर्च एंड एवेल्युएशन LDA तैनात किया है। DG LDA ने ख्वाजा जावेद असलम को एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टोरेट में रिपोर्ट करने की हिदायत की है। चीन और पंजाब हुकूमत के इश्तराक से पंजाब में गारमेंट्स इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में पंजाब हुकूमत और चाइना नेशनल टेक्सटाइल्स एंड निटिंग इंडस्ट्री के माबैन मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। याददाश्त पर दस्तखत करने के लिए 188 मॉडल टाउन में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज इरफान अली, चेयरमैन P&D इरफान इलाही, सेक्रेटरी फाइनेंस जहांजेब खान, वाइस चेयरमैन पंजाब IT बोर्ड सैयद मरातब अली और सेक्रेटरी जनरल चाइना नेशनल टेक्सटाइल एंड नेटिंग इंडस्ट्री गार्ड यंग समेत 7 रुकनी चीनी वफ्द ने शिरकत की। चीफ ऑर्गेनाइजर गुलबर्ग ताजिर बोर्ड सफदर बट की ज़ेर सदारत ताजिर रहनुमाओं का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मार्केट में तरक्याती काम करवाने समेत दीगर अमूर पर बहस हुई। सदीक ट्रेड सेंटर में मुनक़िदा इजलास में ताजिर रहनुमा सैयद अजहर शाह, यूनुस बेग, बकार हुसैन, हाजी फ़कीर मोहम्मद, गाजी अमानुल्लाह, अरशद खान, राना आजम, चौधरी अब्दुर्रहमान, जुमा खान, मियाँ साकिब, आसिफ निसार, राना जफर समेत दीगर ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से सदर अंजुमन ताजरान, हालडोड, बाबर महमूद समेत दीगर ताजरों ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की और उनको मुबारकबाद पेश की। गवर्नर पंजाब ने ताजिर बिरादरी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सूबे में बच्चों के तालीम जैसे बुनियादी हक़ को यकीनी बनाया जाएगा और उन्होंने कहा कि वो तवक्को करते हैं कि लोग वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की तरफ से तालीम के मैदान में मुरतब किए गए इनकलाबी मंशूर की भरपूर ताईद और हिमायत करेंगे। सिंगापुर से आए हुए ज़ायरीन ने समाजी रहनुमा आबिद मीर की क़यादत में हज़रत शाह इनायत कादरी के मज़ार पर हाज़िरी दी और चादर पोशी की। क्वींस रोड पर वाक़ हज़रत शाह इनायत कादरी के मज़ार पर सिंगापुर से आए हुए ज़ायरीन आबिद मीर, इमरान आबिद मीर, हफीज़ुर रहमान बट, आगा अब्बास और मोहम्मद नसीर समेत दीगर अफराद ने हज़रत शाह इनायत कादरी के मज़ार पर हाज़िरी दी और चादर चढ़ाई। इस मौके पर समाजी रहनुमा आबिद मीर ने कहा कि लाहौर बुजुर्गान दीन का शहर है और वक्त की शक्ल में लाहौर में मौजूद मज़ारात पर हाज़िरी देने के लिए सिंगापुर से आए हैं। उनका कहना है कि हम सबको चाहिए कि बुजुर्गान दीन की बताई हुई बातों पर अमल पैरा हों। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियां महमूद रशीद का कहना है कि पंजाब में गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात करवाने के खिलाफ तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद होकर पंजाब असम्बली के बाहर धरना देंगी।
एम्बेसडर होटल में पंजाब असम्बली की अपोजिशन जमातों की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियां महमूद रशीद, तहरीक इंसाफ के मियां असलम इकबाल, पीपल्स पार्टी के तनवीर अशरफ कायरा मौजूद थे। जमात इस्लामी की जानिब से अमीरुल अजीम सदर लाहौर हाई कोर्ट बार आबिद साकी, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे अब्दुल्ला मलिक समेत दीगर जमातों के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाब कराए जाने पर गौर किया गया। आबिद साकी ने कहा कि हाई कोर्ट बार सियासी जदोजहद करने वाली अपोजिशन जमातों को मुफ्त कानूनी खदमात पेश करेगी। मियां महमूद रशीद ने मुश्तरका एलामिया में कहा कि मकामी हुकूमतों के निज़ाम में जमाती बुनियादों पर इंतखाबात के अमल को यकीनी बनाया जाए। मकामी हुकूमत को हक दिया जाए कि वो अपनी मर्जी से तालीम और सेहत के मकामी निज़ाम को चलाए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें आइंदा चंद रोज़ में पंजाब भर में भरपूर एहतजाज के लिए लाहे अमल तय करेंगी। पंजाब असम्बली के इजलास में बल्दियाती बिल मंजूर कर दिया गया। स्याह पट्टियां बांधकर शरीक अपोजिशन ने बिल की मंजूरी के लिए दौरान इजलास बाइकॉट किया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान की ज़ेर सदारत इजलास 33 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। इजलास में सूबाई गुज़रा ने महकमा ज़कात और खुराक के हवाले से पूछे गए सवालात के जवाबात दिए। इजलास में ड्रोन हमलों के खिलाफ करारदाद पेश न करने पर रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां असलम इकबाल और सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई, जबकि अपोजिशन ने वॉकआउट भी किया। मियां असलम इकबाल का कहना था कि ड्रोन हमले मुल्की सालमियत के खिलाफ हैं और इससे दहशतगर्दी को फरोग मिल रहा है। मियां असलम इकबाल का कहना था कि बल्दियाती निज़ाम में ब्यूरोक्रेसी को पावर दी जा रही है। बल्दियाती मुसविदा बिल की तरमीम पर बहस के दौरान अपोजिशन ने स्पीकर से APC के बायस इजलास कल तक मुलतवी करने की इस्तदा भी की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। बाद अज़ां इजलास में इस बात पर बहस की गई कि एक तरमीमी बिल पर बहस में हिस्सा लेने वाले अरकान दूसरी तरमीम पर बात कर सकते हैं कि नहीं। इस पर अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद का कहना था कि ऐसी कोई रूलिंग मौजूद नहीं है। सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह की जानिब से रूलिंग पढ़कर सुनाए जाने पर मियां महमूद रशीद ने इजलास का बाइकआउट कर दिया। इसके बाद अपोजिशन की अदम मौजूदगी में तरमीम शुदा बल्दियाती बिल मंजूर कर लिया गया। मज़ीद खबरें बुलेटिन में शामिल की जाएंगी इस ब्रेक के बाद। चुंग में देवर ने बदचलनी के शुबा में भाभी और भतीजी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम का कहना है उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। रिपोर्ट कर रहे हैं वकास अहमद। मां बेटी के कत्ल का वाकया चूंग के इलाके मोहल्ला 5 ग्राइया में पेश आया, जहां 38 साल लड़के और उसकी जवान साला बेटी माफिया को देवर ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजम यूसुफ को जाए वकुआ से असलह समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों मां बेटी की लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी गयी। देवर ने मारा अपनी भाभी को और भतीजी को, उसको कोई शुबा था इन पे, तो उसने कत्ल किया और उसको पकड़ा तो उसने बताया कि मैंने मारा है इनको, इस वजह से मारा है। तो मजीद अभी तफ्तीश जारी है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो भी सूरत हाल होगी वो सामने आ जाएगी। दोहरे कत्ल के इल्जाम में जेर हिरासत मुलजम का कहना है कि इसने गैरत की खातिर दोनों खवातीन को कत्ल किया, जिसका इसे कोई अफसोस नहीं। बदचलनी के शोबे में मार देती है, बदचलनी कर दी थी, खत्म कर दी। कोई भी गैरतमंद नहीं ना बंदा बर्दाश्त कर सकता, घर से बगैरती है बस जो है ठीक हो। गुस्सा का इल्जाम है कि कत्ल की इस वारदात में मकतूला का शोहर मंजूर भी मुलव्वस है और इसे भी शामिल तफ्तीश किया जाए। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ वकास अहमद, सिटी 42। गाजियाबाद में खातून की मुबैना खुदकुशी का भांडा फूट गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद साबित होने पर पुलिस ने भाई की मदईयत में मकतूला की सास और जेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इकबाल टाउन की सबा एजाज की शादी 2 साल कबल गाजियाबाद के सदाकत से हुई। बुध के रोज 22 साला सबा को पंखे से लटका हुआ पाया गया, जिस पर ससुरालियों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसने खुदकुशी की है, जबकि मकतूला के वरसा का कहना था कि ससुरालियों ने उनकी बेटी को कत्ल करने के बाद लाश लटकाकर खुदकुशी का रंग दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सबा की मौत तशद्दुद से हुई, जिसे बाद में लटकाया गया। गाजियाबाद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में भाई फैसल की मदईयत में सास जीनत बीबी और जेठ मलिक शफकत के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सब्जाजार के इलाके में तल्ख कलामी पर दोस्त के हाथों फायरिंग से जख्मी होने वाली स्टेज अदाकारा जिन्ना अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मक्का कॉलोनी के सुंदस और नाइला मदीना कॉलोनी डुब्बनपुरा में अपने दोस्त आदिल शेख से मिलने आई, जिसे आदिल शेख अपने किसी दोस्त के घर लेकर चला गया, जहां पर उनमें तल्ख कलामी हो गई, जिस पर मुलजिम ने तैश में आकर सुंदस और नाइला पर फायरिंग कर दी, जिससे शदीद जख्मी हो गई। जख्मों की ताब ना लाते हुए नाइला जनाह अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।
ریس کورس پارک میں لگائے جانے والے ساون میلے میں جوس اسٹال کے 45 سالہ مالک عبدالغفار کی مبینہ خودکشی پولیس اور پارک انتظامیہ کے لیے معمہ بن گئی۔ ریس کورس پارک کے انتظامیہ سمیت عینی شاہدین اور ریس کورس پولیس اسٹیشن کے مطابق فیصل آباد سے تعلق رکھنے والا 45 سالہ عبدالغفار کا ساون میلے میں جوس کارنر کا اسٹال تھا، جسے بدھ کی صبح اپنے اسٹال کی چھت سے جھولتے ہوئے اس کے بیٹے سرفراز نے نیچے اتارا۔ پولیس کے مطابق مبینہ طور پر کاروباری نقصان اور گھریلو حالات سے دل برداشتہ عبدالغفار کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، البتہ وہ اپنی ہی پگڑی سے جھولتا ہوا پایا گیا۔ ریس کورس پولیس نے مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے عبدالغفار کی موت کی اصل وجہ جاننے کے لیے اس کے بیٹے سرفراز سمیت دیگر اسٹال ہولڈرز کو بھی شامل تفتیش کر لیا ہے، تاہم تاحال مبینہ خودکشی کے اصل حقائق سامنے نہیں لائے جا سکے۔ عبدالغفار کے بیٹے سرفراز کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ جوس کا اسٹال لگاتا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 1 کروڑ 82 لاکھ روپے کی گیس چوری کرنے والے CNG اسٹیشن کے مالک نادر حسین کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ جسٹس منظور احمد مالک کی عدالت میں ملزم نادر حسین کی جانب سے درخواست ضمانت میں وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ وہ گجرات میں ایک CNG اسٹیشن کا مالک ہے اور باقاعدگی سے گیس کا بل جمع کراتا رہا ہے۔ اب سوئی گیس کے محکمے کے اہلکاروں نے اس کے CNG اسٹیشن پر ریڈ کر کے اسے 1 کروڑ 82 لاکھ روپے کا ڈیٹیکشن بل ڈال دیا ہے اور مقدمہ درج کروا کر گرفتار کر لیا ہے۔ وکلاء نے کہا کہ ان کا موکل بل جمع کرانے کو تیار ہے، اس کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے اسے رہا کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت میں DPO گجرات سید علی ناصر رضوی پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ پولیس تفتیش میں ملزم گناہ گار ہے اور اس نے میٹر میں ٹیمپرنگ کر کے طویل عرصہ گیس چوری کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں 22 سالہ نوجوان کی ہلاکت کا نوٹس لیتے ہوئے سیکنڈ سیشن جج لاہور اور IG پولیس پنجاب سے 1 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جمیل پارک سگیاں کے رہائشی احمد علی نے لاہور ہائی کورٹ کی کمپلینٹ سیل میں درخواست دی تھی کہ اس کے 22 سالہ بیٹے مظہر علی کو تھانہ نواب ٹاؤن پولیس نے رہزنی کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ کئی روز حراست میں رکھنے کے بعد پولیس کی جانب سے اسے اطلاع دی گئی کہ اس کا بیٹا مقابلے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ خبر دیں گے آپ کو بینکنگ کوڈ سے، جہاں پر نادہندگی پر سید صفدر رضا نامی شہری کو عدالتی بیلف کے ذریعے گرفتار کرا کے کیمپ جیل بھیج دیا گیا۔ فیصل بینک والٹن برانچ انتظامیہ نے مال ٹاؤن کے رہائشی سید صفدر رضا کے خلاف 7 لاکھ کریڈٹ کارڈ قرض کی ریکوری کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ اس پر عدالت نے نادہندہ کے خلاف ڈگری جاری کرتے ہوئے درخواست گزار کی استدعا پر عدالتی بیلف کے ذریعے سید صفدر رضا کو گرفتار کروا دیا۔ لاہور بورڈ نے 9ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ کامیابی کا تناسب 39.48% رہا۔ لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے 9ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ امتحان میں 2,14,975 امیدواروں نے شرکت کی ہے، جس میں سے 84,868 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح کامیابی کا تناسب 39.48% رہا۔ بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ تمام امیدواروں کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے اور کسی بھی امیدوار کا رزلٹ لیٹر آن نہیں ہے۔ انٹرٹینمنٹ کی رنگ رنگ دنیا سے کچھ خبریں آپ جان سکیں گے سٹی انٹرٹینمنٹ میں۔ معروف موسیقار طارق وزیر نے نئے گلوکار ساحل عباس کے آڈیو البم کے گانوں کی ریکارڈنگز مکمل کر لی۔ البم 2 روز بعد ریلیز ہوگا۔ بخشی وزیر میوزیکل اسٹوڈیو میں ریکارڈ ہونے والے البم میں 10 گانے شامل ہیں، جن کی صدا بندی مکمل کر لی گئی ہے۔ اس البم کا نغمہ نگار تنویر نازش اور موسیقار طارق وزیر ہے، جن کا کہنا ہے کہ وہ نئے گلوکاروں کے لیے اپنے اسٹوڈیوز کے توسط سے پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔ نامور موسیقار وضاحت اترے نے نئے ٹیلنٹ کو گلوکاری کے اسرار و رموز سکھانے کے لیے میوزیکل اکیڈمی بنا لی۔ ہدایتکار شہزاد رفیق اور فلم ساز کامران چودھری نے افتتاح کیا۔ شبرجی چوک میں واقع حجویری سینٹر میں ہونے والی افتتاحی تقریب میں نامور فلم ہدایتکار اقبال کاشمیری، پرویز کلیم، گلوکار آفشاں، زاہد خان، سلیم بزمی، فیاض علی خان، ٹھاکر لاہوری سمیت متعدد افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر اکیڈمی کے آغاز پر سب مہمانوں کو مٹھائی کھلائی گئی، جبکہ موسیقار وضاحت اترے کا کہنا تھا کہ اب موسیقی کو ہر ایک نے مذاق بنا لیا ہے، تاہم اس کو سیکھنے کے لیے انسٹیٹیوٹس کی بھی کمی ہے۔ انہوں نے کہا اکیڈمی میں موسیقی کا شوق رکھنے والے افراد کو موسیقی کی تربیت دی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں ڈیلی سٹی 42۔